if you are planning to take admission in Delhi University for PhD admission, then be careful. Your research proposal matters a lot. While your application will be screening, it is on the basis of your research proposal. And you must remember these 6 points before final submission of Delhi University PhD application. Now, how to write a proposal? No need to use your brain. Delhi University have clearly mentioned the instruction कि ये 6 points के अंडर में you have to finalize your proposal. So everything is very clear. Don't use your brain या अपना पुराना proposal submit करने का कोशिश मत करना. It is completely not possible. So they have decided to compile your proposal under 6 major heading. So in this video, I'll show you one proposal of mine interest topic, and under these heading, what you have to write one by one, I'll definitely explain you. So accordingly, you have to decide how to finalize your proposal. This is very important before your final submission of the application. Now, see, I have decided a title जिसका topic है nano formulation of neem leaves for antiviral activity. This is a simple topic जिसको लेके I'll explain all the 6 major headings, जिसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि what is that proposal and how you will be screened in the shortlisting and कैसे आपको marks मिलेंगे और आपका interview अच्छा जा सकता है on that basis. Now, the very first topic which the application mentioned is the proposed theme or scope of research. So my title is nano formulation of neem leaves. Neem, you know neem, Azadica indica, neem leaves for antiviral activity. This is just an example, fine. So what is a proposed theme or scope of research? So the proposed research aims to investigate the potential antiviral activity of nano formulation derived from neem leaf extract. तो हमारा थीम क्या है कि हम जो नीम एजार्टिका इंडिका है उसकी लीफ का पोटेंशियल एंटीवायरल एक्टिविटी देखें, किस चीज़ का, नैनो फॉर्मुलेशन का. सो दिस हैज़ बीन वाइडली रिकॉग्नाइज फॉर इज. अब हमने उसका स्कोप बताया रिसर्च का, अभी हमने थीम बता दिया. नाउ आई हैव टू टेल द स्कोप लिटिल बिट इन अ मिक्सचर फॉर्म. लाइक कि मैं बताऊंगा कि लाइक दिस इज हैविंग अ वेरी गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग दिस. सो by utilizing nanotechnology, this study aims to enhance the therapeutic efficacy. So मैं बताऊंगा उसका स्कोप क्या है कि मैं नैनो फॉर्मुलेशन बनाने के बाद आई एम गोइंग टू enhance the biological activity that can be effectively target and inhibit viral infection, है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए. सो मेरी फॉर्मुलेशन ये होगी. तो द रिसर्च विल फोकस ऑन करेक्टराइजिंग द फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो फॉर्मुलेशन. अब आपको शॉर्ट में बता देना है कि क्या है तुम्हारी थीम और क्या काम करने चाहते हो. नैनो फॉर्मुलेशन इवेलुएटिंग देयर वायरल एक्टिविटी अगेंस्ट अ पैनल ऑफ वायरस, elucidating the underlying mechanism of action, or exploring the potential of clinical application. Now, this is the scope of research जो मैं बताने वाला हूँ. तो this is very important. On these basis, they will select your further application. Now, the second important topic which is there in your application is proposed research question. What does this mean? क्या research question तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं once you will start this proposal? So the research question will address the following questions. Can nanoformulation of neem exhibit enhanced antiviral activity? मेरे दिमाग में क्या होगा कि neem is already having an antiviral activity. Now I am planning to form some type of nanoformulation. तो क्या ये नैनो फॉर्मुलेशन एंटीवायरल एक्टिविटी को बढ़ाएगा या कन्वेंशनल मींस कंपेयर टू द कन्वेंशनल नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, तो जो नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा था और जो मैं बनाने वाला हूँ, क्या वो बढ़ाएगा? ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? व्हाट आर द ऑप्टिमल पैरामीटर्स फॉर द सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन? बिकॉज आई एम गोइंग टू सिंथेसाइज दिस नैनो फॉर्मुलेशन. सो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि यार वो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे आई विल सिंथेसाइज और मैं उसको करेक्टराइज कर पाऊँ. बिकॉज नैनो फॉर्मुलेशन है तो करेक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगेन दिस विल कम इन टू माई माइंड. नाउ द थर्ड क्वेश्चन विल बी, how do the physiochemical properties of this formulation influence the antiviral activity?
अब I have formulated the nano formulation. Now, whether these formulated form means nano formulation form will influence the antiviral activity. क्या हो सकता है ना करे, फॉर्मुलेशन तो बन गया बट एंटीवायरल एक्टिविटी ना आए, तो ये भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहेगा. नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म अंडरलाइंग द एंटीवायरल एक्टिविटी. तो मैं भी ये भी सोचूंगा कि जो नैनो फॉर्मुलेशन काम कर रहा है इसका क्या मैकेनिज्म है, ये भी सोचना चाहूंगा ना, बिकॉज दिस इज माई प्रपोजल. नेक्स्ट, कैन द नैनो फॉर्मुलेशन इफेक्टिवली इनहिबिट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ वायरस. मैं भी ये सोचूंगा ना, बिकॉज मैंने नैनो फॉर्मुलेशन बनाई है, सो दैट फॉर्मुलेशन कैन बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ वायरस और अ सिंगल वायरस और अ एनवेलप्ड वायरस और अ नॉन एनवेलप्ड वायरस. बिकॉज ये मुझे सोचना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज माई प्रपोजल. गॉट इट. सो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू ड्राफ्ट योर प्रपोजल. आप किसी भी ब्रांच के हो, सोशियोलॉजी के हो, हिंदी के हो, मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, हिस्ट्री के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, लैंग्वेज के हो, प्लीज बी केयरफुल. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड ऑफ वर्क. मीन्स व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स जिससे कि आप काम स्टार्ट करने वाले हो. So the primary source of the field of the work in this proposal is the field of nanomedicine, because you are taking the help of nanomedicine in the formulation of some herbal formulation which is a neem. So which focuses on the development and application of nanotechnology. क्यों? क्योंकि हम एक नैनो मेडिसिन सेक्टर की हेल्प ले रहे हैं. तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड क्या है? नैनो मेडिसिन. उसके बाद क्या है? हेल्थ केयर, मेडिसिन, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर. फाइन. उसके बाद देखिए, स्पेसिफिकली द स्टडी ड्रॉज अपॉन द सब फील्ड ऑफ नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. अभी यहाँ प्लांट की बात नहीं हो रही, अभी यहाँ एंटीवायरल की बात नहीं हो रही, अभी यहाँ बात हो रही है व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड ऑफ वर्क. So these are the potential application of nano antiviral therapeutics. So this research will integrate the knowledge from disciplines such as pharmaceutical science, because एक drug formulation बन रही है, nanobiotechnology, nanotechnology, virology and medicinal chemistry. क्यों? क्योंकि characterization आ रहा है, physiochemical properties देखोगे, synthesize करोगे तो chemistry. So this is the primary source of field of work. Got it? सो ये सारे टॉपिक्स को ध्यान से समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है. नाउ एक हेडिंग आपको और मिलेगी, मेजर राइटिंग्स इन द फील्ड. देखो ये बहुत ही मैं बोलूँगा आर्टिस्टिक वे में इन्होंने जो मेन टाइटल्स होते हैं ना उनको चेंज किया है. अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखना चाहूँ, सो इट इज़ कॉल्ड द लिटरेचर रिव्यू. दिस इज सिंपली द लिटरेचर रिव्यू. So some significant writings means publication in the proposed field. अब मैं एक एक करके रेफरेंस दूंगा. दिस इज़ वन ऑफ द वे, बट मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा और अच्छा लिखो, एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखो, लाइक दिस एट ऑल हैज़ रिपोर्टेड, कि जैसे लिटरेचर रिव्यू आप कंपाइल करते हो कि उन्होंने वायरल इन्फेक्शन को देखा नए टेक्नोलॉजी से, किसी ने उस पर काम किया, नीम पे काम किया बट नैनो पे नहीं किया. सो सिमिलरली जो रिलेटेड लिटरेचर हैं यू हैव टू कोट. दिस इज़ अ लिटरेचर रिव्यू, और ये बहुत ही आपको ठीक से लिखना होगा, इधर उधर की फालतू लिटरेचर नहीं कोट करनी है. दैट्स इट. नाउ कम्स द मेजर हेडिंग विच इज़ द पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन. यहाँ पे कुछ लोग को बेनिफिट मिलने वाला है और कुछ लोग को थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना होगा. नो प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट हैव एनी पब्लिकेशन. No problem if you don't have any past research experience. Now, what I have read as a prospective PhD candidate during my master's program in pharmaceutical sciences, because I'm from the pharmaceutical sciences, I conducted research on the formulation and evaluation of drug-loaded nanoparticles. तो मैं ये बता रहा हूँ कि I have already done the nano formulation synthesis. मैंने बेसिक चीज़ कर रखी है, but not with the neem, Azadirachta indica नहीं किया. Now, this research project resulted in the publication titled Development of Targeted Nanoparticle for Cancer Therapy. So, अब आपके जितने भी पब्लिकेशन है उसको सिक्वेंशली डाल दो. अगर रिव्यू है तो उसको भी स्मार्टली इस पैराग्राफ में लिख दो कि इन जर्नल ऑफ दिस आई ऑल्सो गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन वेरियस लेबोरेटरीज टेक्निक. कोई आपने ट्रेनिंग की है तो लिखो, बिकॉज दिस इज अ पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस.
अपना डेजर्टेशन किसी लैब का है, देन यू राइट. कोई वर्कशॉप में गए थे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी, डोंट स्किप, मेंशन करो. ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी का, उस टॉपिक से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छी बात है. इफ दैट इज नॉट देयर देन ऑल्सो यू हैव टू राइट. फाइन. Now, what is that? Additional information. This additional information is very important point. कुछ ना कुछ मेंशन ज़रूर करो. जैसे कि मैंने क्या मेंशन किया है, that the current global need for the effective antiviral, that is especially in the content of emerging this proposal. अपने proposal को emphasize कराओ यार कि this is the need of an hour, this is an emerging viral disease. सो द पोटेंशियल ऑफ नीम बताओ उसके बारे में कि वो एंटीवायरल है, कपल्ड विद एडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इनोवेटिव स्ट्रैटेजी फॉर कम्बैट, कि इम्यूनिटी में काम आएगा, ये सब चीज़ करेगा, नीम एक्सट्रैक्ट है. तो इस तरीके से चीज़ों को दो और लास्ट में यहाँ पर रेफरेंसेस दे के इसको बाइंड अप कर दो. सो आई गेस इस तरीके से आप लोग भी सारे लोग प्रपोजल फाइनल कर लोगे, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं. मेंबर्स मेरे सारे हम लोग ने फाइनल किया. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग. ऐसा नहीं है कि दिस इज़ लाइक टू सिंपल. यू हैव टू सर्च आउट, यू हैव टू गो थ्रू द लिटरेचर. इतनी ईजिली फाइनल नहीं होगा. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज आई कैन से इज़ इन फाइनलाइजिंग योर रिसर्च टाइटल. एंड रिसर्च टाइटल मस्ट बी वेरी यूनिक. उस पर कुछ भी काम होना नहीं चाहिए. देन ओनली यू विल डिसाइड एंड फाइनलाइज योर रिसर्च टाइटल. उसके बाद आपको प्रपोजल और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने. सो दैट इज़ द मेजर टास्क. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर ग्रुप, join our membership also, then you can proceed. If you are still feeling any doubt then please let me know so that I just get to know कि कहाँ problem आ रही है. Otherwise we have finalized so many proposals. I'll definitely help you for that. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. Application form submit करने से पहले sure हो जाना that you have submitted the perfect form for your selection.